السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ خواتین کو باوقار روزگار کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے اہم اقدام۔ گھریلو صنعت اور چھوٹے کاروبار سے منسلک خواتین کو ایس ایم ای سیکٹر میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی خواتین کے کاروبار میں اضافے کے لیے تربیت کی فراہمی اور سہولت مراکز قائم کرنے کی ہدایت۔ جامع لاہے عمل اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے کمیٹی قائم۔ یوتھ لون اسکیم کے ذریعے خواتین کو کاروبار کے لیے قرض کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کا صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا اظہار۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے یکساں مواقع سے خواتین کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ خواتین کے حقوق کو یقینی بنانا ہمارا مشن اور غیر متزلزل عزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خواتین کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب۔ با اختیار خواتین پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور روشن مستقبل کے لیے ناگزیر۔ معاشرے کی نصف آبادی کو تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار تک رسائی دینا پوری قوم کے لیے سود مند۔ ہمیں ایک ہمہ جہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ خواتین کے تحفظ، تعلیم اور معاشی آزادی کے لیے پالیسیز بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی یوم نسواں پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے دیرینہ دوست چین کا تعاون جاری۔ پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ قرض واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہونا تھی۔ ترجمان وزارت خزانہ۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق امریکی صدر کا مجوزہ منصوبہ مسترد۔ اسلامی تعاون تنظیم کے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کا عزم۔ غزہ میں بنیادی ڈھانچہ تباہ، سکولز، عبادت گاہیں، مکانات، تجارتی مراکز ملبے کا ڈھیر۔ جنگ بندی کی کوششیں امید کی کرن ہیں۔ فلسطین کی صورتحال مسلم دنیا سے فوری رد عمل کی طلبگار۔ 3 نکاتی جنگ بندی معاہدے پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ امداد کی ترسیل کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تازہ ترین جغرافیائی سیاسی پیش رفت کا تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے سیاست کی، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ ہم 9 مئی نہیں 28 مئی والے ہیں۔ PTI دور میں ملک کی ترقی کا سفر روکا گیا۔ نفرت، تقسیم اور لوٹ مار کی سیاست کی۔ بانی PTI نے 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیتی کی۔ قوم کو تقسیم کرنے والی جماعت آج خود تقسیم کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ سینٹ میں خواتین کے عالمی دن پر قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر شیری رحمان نے پیش کی۔ خواتین کی معاشی ترقی میں شمولیت ترجیح ہونی چاہیے۔ صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے جائیں۔ خواتین کے خلاف ہر قسم کے تشدد کا خاتمہ کیا جائے۔ قرارداد کا متن۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ سیکورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ 3 خارجی جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد معصوم شہریوں اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پوری قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
गैर कानूनी मुकीम अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। फैसला मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलविस होने के पेश नजर किया गया। बनू कैंट हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। खुदकुश हमले की मंसूबा साजी अफगान सरजमीन पर की गई थी। वजारत दाखिला का 1 अप्रैल से मुल्क बदरी का अमल शुरू करने का भी ऐलान। पाकिस्तान के ज़रई मुस्तकबिल के लिए महफूज शहीद किनाल की तामीर नागुज़ीर। हुकूमत पंजाब की जानिब से मंसूबे के लिए 225 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस। 176 किलोमीटर तवील किनाल दरिया सतलुज पर बनाई जाएगी। मंसूबे की तकमील से चोलिस्तान की बंजर जमीन काबिल काश्त होगी। बंजर जमीन की आबादकारी से मईशत में बेहतरी और लोगों को रोजगार मिलेगा। महफूज शहीद किनाल सिर्फ पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां। भारतीय फौज के हाथों खवातीन को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। भारतीय फोर्सेज ने 2001 से अब तक 688 कश्मीरी खवातीन को शहीद किया। 11,266 खवातीन की बेगुरमती की गई। कुनन पोशपुरा जैसे इज्तमाई आबरू रेजी और कत्ल के अलमनाक वाक़यात खवातीन पर मजालिम की वाज़ेह मिसालें। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी खवातीन के हौसले बुलंद। हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय फिजाइया बदहाली का शिकार। एक ही दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। 7 मार्च को भारतीय फिजाइया का A-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा बगडोगरा में गिरकर तबाह हो गया। इससे पहले भारतीय फिजाइया का जैगवार तैयारा राय रानीपुर के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय उमरसीदा जैगवार जहाजों ने तकनीकी मसाइल की वजह से गुज़श्ता सालों में कई क्रैश देखे। मोदी की नाक़िस पॉलिसीज की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका है। दिफाई माहिरी दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीत कोई भी न जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा? भारतीय टीम तीसरी मर्तबा टाइटल जीतेगी या कीवीज 25 साल बाद दूसरी मर्तबा चैंपियन बनेंगे? फैसला कल फाइनल में होगा। दुबई में होने वाला मुकाबला देखिए दिन 2 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। भारतीय टीम को दुबई की कंडीशंस का ज्यादा अंदाजा है। फाइनल मैच चैलेंजिंग होगा। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे और टाइटल जीतेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल प्रेशर गेम। दबाव से बेहतर तौर पर निपटने वाली टीम कामयाबी हासिल करेगी। हम भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं, लेकिन इस बार पूरी टीम जीत के लिए पुराज़म है। भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। शिमाली और बालाई इलाकों में कल शाम से 16 मार्च तक का बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और खिता पोठोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। 14 मार्च तक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 30 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज के तहत कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों को पंजाब भर में 18,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बगैर किसी फीस 10,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद की फराहमी कामयाबी से जारी। किसी भी फर्द या एजेंट की जानिब से रकम का मुतालबा या कटौती कानूनन जुर्म है। इसकी शिकायत 0800023445 पर फौरी दर्ज करवाएं। रकम में कटौती करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। हुकूमत पंजाब। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेट्रो बस सर्विस बनाई, जिससे हम जैसी खवातीन का सफर हुआ आसान, महफूज और पुरसकून। हाँ जी, शुक्रिया तो बनता है। खवातीन को बावकार रोजगार और कारोबार के जरिए बाइख्तियार बनाने के हवाले से बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में शामिल करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जारी इस्लाहात के हवाले से लाहौर में जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने घरेलू और छोटे पैमाने पर कारोबार से मुंसलिक खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से जामे लाहे अमल और सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम की, जो वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात पेश करेगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने घरेलू सनत से मुंसलिक कारोबारी खवातीन को कारोबार में इजाफे के लिए ज़रूरी सरमाए और सहूलियात की तरजीह बुनियादों पर फराहमी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को बावकार रोजगार और कारोबार की फराहमी के लिए तमाम तर ज़रूरी वसाइल और तरबियत फराहम करेगी। घरेलू सनत से मुंसलिक खवातीन के कारोबार में इजाफे और तरबियत के लिए सहूलत पर राकिस तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यूथ लोन स्कीम से खवातीन को कम लागत कर्जों की फराहमी के लिए इक़दामात करने की हिदायत करते हुए कहा कि देही और दूर दराज इलाकों में तालीम याफ्ता और हुनरमंद खवातीन को अपने कारोबार से बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। यूथ लोन स्कीम के जरिए खवातीन को अपने कारोबार के लिए कम लागत कर्जाजात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को स्मेडा के तहत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरक्की के लिए इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। खवातीन की खिदमात पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। खवातीन का आलमी दिन दुनिया भर में हकूक़ नस्वां की तहरीक में मरकजी हैसियत रखता है। पाकिस्तान की निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। तहरीक पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना हो या बेगम राना लियाकत अली खान का किरदार, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों या मलाला यूसुफजई, खवातीन का पाकिस्तान की तरक्की और इर्तिका में मरकजी किरदार किसी कीमत झुटलाया नहीं जा सकता। सूबा पंजाब की तकदीर बदलने वाली वज़ीर आला मरियम नवाज हो या सुप्रीम कोर्ट में मजबूत आवाज बनने वाली जस्टिस आयशा और आसमा जहांगीर, ये वो नाम है जो हमेशा याद रखे जाएंगे। खवातीन
خواتین کے معاشرے میں کلیدی کردار کو پہچاننے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ان کی خدمات کے اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کسی بھی ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مرد کا۔ خواتین کی ترقی اور بہبود ایک چیلنج تھا۔ بطور وزیر اعلیٰ جب بھی موقع ملا، خواتین کو منصفانہ حقوق کی فراہمی، وراثت میں حصے کا قانون، بچیوں کے لیے زیور تعلیم اسکالرشپ، پنجاب انڈونمنٹ فنڈ، لیپ ٹاپس کی فراہمی، بیرٹ پر بھرتیاں اور تحفظ کے لیے نہ صرف قوانین بنائے بلکہ ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں۔ ڈے کیئر سینٹرز اسلام آباد میں بن چکے ہیں۔ ورکنگ وومن انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پنک بسز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ پنجاب میں سی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج تھا، وہ پی ایم وومن امپاورمنٹ پیکج، اس کا ہم نے اجرا کیا ہے۔ وی ول انشور دیٹ آر فیمیل پاپولیشن دے آر fully empowered in time to come in collaboration with provincial governments so that Pakistan find its high place in the community of nations. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق اور قانون و انصاف کے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کردار اہم ہے۔ آج ایک بار پھر عہد کریں کہ ہم معاشرے کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کی تعمیر کے لیے اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو خود مختار بھی کریں گے، امپاور کریں گے، ان کی تعلیم کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یحییٰ نے کہا کہ بیجنگ ڈیکلریشن کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر خواتین کے حقوق، ان کی عزت اور خدمات کا اعتراف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ رکن قومی اسمبلی اور چیئرپرسن اسپیشل کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ نفیسہ شاہ نے کہا کہ معاشرے میں صنفی امتیاز کی نفی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت خواتین کے کردار کے پیش نظر اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن لیلا نے کہا کہ تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے حقوق اور صنفی مساوات کو یقینی بنانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایس اے سی پی کے چیئرمین عاقب سعید نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کمپنیز میں مینجمنٹ کیڈر میں 28% خواتین کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ ہراسانی کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل کمپنیوں کے نمائندوں میں ایوارڈز تقسیم کیے اور مختلف میدانوں میں ان کی کارکردگی کو سراہا۔ تقریب میں جینڈر پیرٹی رپورٹ کا بھی اجرا کیا گیا۔ معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا اہم مقام ہے۔ خواتین کو مساوی مواقع سے نہ وہ صرف خود مختار بنتی ہیں بلکہ پورا معاشرہ بھی ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا ہماری قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ عالمی یوم نسواں پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کو تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار تک رسائی دینا پوری قوم کے لیے سود مند ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بہت سی خواتین کو اب بھی تشدد، امتیازی سلوک اور معاشرتی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ہمیں ایک ہمہ جہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ کاروباری اور نجی شعبے کو خواتین کے لیے مساوی مواقع، منصفانہ اجرت اور کام کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان نے سیاست، عدلیہ، قانون نافذ کرنے والے اور دیگر سرکاری اداروں میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب کی رقم کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی ہے۔ چین کے $2 ارب کے اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہونا تھی۔ چین کی جانب سے قرض کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع سے پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ مصر اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی کاوشیں امید کی کرن ہیں۔ مزید بتائیں گی نمرہ سہیل۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطینیوں کو جبری بے گھر کرنے کی تجویز کو سرخ لکیر تصور کیا جائے۔ جدہ میں اپنے اہم خطاب میں محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ مسلم امہ اس بات کو واضح کرے کہ فلسطینیوں کو غزہ یا مغربی پٹی سے بے گھر کرنا نسل کشی ہے۔ whether from Gaza or the West Bank, is ethnic cleansing and a war crime under international law. The OIC must categorically reject any proposal that seeks to eject the Palestinians from their own homeland.
No external force has the right to dictate their future to the Palestinians. They must determine their own future through an exercise of self-determination. नायब वजीर आजम ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने की इसराइली वजीर आजम की इश्तियाल अंगेज तजवीज़ की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम हर उस तजवीज़ को रद्द करे जो फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए हो। Israel's eagerness to revive the war and to resume its campaign of violence must be thwarted with a united resolve. Excellencies, peace cannot be sustainable as long as actions by Israel in the occupied West Bank continue. Military raids, settler violence, and illegal land annexations intensify with every passing day. These are not isolated incidents, but part of a deliberate strategy to erase Palestinian identity from its homeland. It is ethnic cleansing in real time. इस्लामी ताउन तंजीम अरकान को रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद इसहाक डार ने इजलास की मेजबानी करने पर खादिम हरमैन शरीफैन, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद समेत तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा किया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने जद्दा में इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास के मौके पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान की बात करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने जद्दा में मुनक़िदा इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल के गैर मामूली इजलास के मौके पर अपने फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी से मुलाकात की। इसहाक डार ने फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। उन्होंने 1967 से पहले की सरहदों पर कायम एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के उसूली मौक़िफ़ का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई। दो तरफा मुलाकात में जद्दा में OIC के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास के मौके पर हुई 5 माह के दौरान होने वाली ये दूसरी मुलाकात है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का अयादा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को सराहा गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और अवामी रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्याती मंसूबे दिए, जबकि कौम को तकसीम का शिकार करने वाली जमात आज खुद तकसीम का शिकार है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने खक्खड़ में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा अवाम की खिदमत की और मुल्क को बहरानों से निकाला। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने सियासत में गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया और नफरत की सियासत से कौम को तकसीम करने की कोशिश की। अताउल्लाह तारर ने कहा कि 1 साल पहले हालात खराब थे और मनफी अनासिर मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दिन रात मेहनत और हुकूमती इक़दामात से मुल्क की मईशत आज दुरुस्त सिमत में गामजन है। 1-1.5 साल पहले इस मुल्क में शर्तें लग रही थी, इस मुल्क में लोग बातें कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और कुछ बदबख्त ऐसे थे जो दुआएं कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। एक तरफ पाकिस्तान बचाने वाले थे और एक तरफ पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले थे। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले वो लोग थे जिन्होंने IMF को लेटर लिखे, जिन्होंने अपने दौर में एक ईंट नहीं लगाई। ये वो टोला था जिसको हम कहते थे पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 मई वालों ने इस मुल्क के दफाई इदारों पर हमले किए, जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 28 मई को एटमी धमाके करके इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये फर्क हमेशा रहेगा। जब भी इस मुल्क पे आजमाइश आई, अल्लाह ताला ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया कि पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाले। पूरी दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम से कम तर होती जा रही है, शरह सूद जो है वो नीचे से नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मियां नवाज शरीफ की ये पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम से
ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। इससे कबल वफाकी वजीर इत्तलात ने घक्कड़ में 1 अरब से ज्यादा मालियत के मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें घक्कड़ साइड ड्रेन बरसाती नाले की तामीर, मौलाना जफर अली खान चौक वजीराबाद ता पिंडी बाईपास गुजरांवाला रोड की कारपेटिंग, घक्कड़ मोटरसाइकिल अंडरपास और घक्कड़ सर्विस रोड की तामीर समेत दीगर अहम मंसूबे शामिल हैं। तमाम मंसूबे अवाम की खुशहाली और शाहराहों पर हादसात से बचाव के लिए बनाए गए हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सेनेट ने पाकिस्तानी खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे और इन्हें मुआशरे के हर शोबे में तरक्की के यकसा मौके फराहम करने से मुतल्लिक मुतफ़क्का करारदाद मंजूर की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI ने अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में भिजवाने समेत खवातीन सियासी रहनुमाओं को भी कोई रियायत नहीं दी थी। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की, जिसकी अवान ने मुतफिका मंजूरी दी। करारदाद में पाकिस्तान में खवातीन को कानूनी हकूक और इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने समेत उनके खिलाफ सनफी बुनियाद पर तशद्दुद और काम की जगह पर हरासानी के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा गया कि तमाम शोबों में खवातीन की मुकम्मल शमूलियत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी ने चेयरमैन सेनेट की जानिब से अपोजिशन के 2 सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के इजरा की सताइश करते हुए कहा कि अपोजिशन शायद भूल गई है कि जब वो इक्तदार में थे तो उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को किस तरह इंतकाम का निशाना बनाया था। नवाज शरीफ साहब जब आए थे, मैं उनके साथ आया था, उनकी बेटी को, दोनों को जेल भेजा गया। अगले दिन जब 4 दिन बाद मैंने उनसे मुलाकात की अडयाला में, तो मैंने पूछा कि मियाँ साहब कैसे क्या गुजरी? कहने लगे कुछ नहीं गुजरी, वो मुझे लाए हैं, एक कोठड़ी खोली है और मुझे कहा जी कि आप यहाँ चले जाएं। मैं चला गया हूँ और उस कोठड़ी के अंदर एक फटी हुई दरी पड़ी थी, मैं उसके ऊपर सो गया। तो ये कहानियां ना बयान किया करें, हमारे साथ जो कुछ होता रहा अब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि बानी PTI को तो जेल में मनपसंद खाने, वर्जिश के लिए मशीनें और दीगर बहुत सहूलियात मुयस्सर हैं, ताहम जब सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जेलों में थे तो उनको बुनियादी हकूक तक से महरूम रखा जाता था। आपके लीडर जो असीर हैं, उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे, शदीद तगप्पुर का शिकार थे। बाहर जाके कहते थे कि मैं इनको बर्फ की सिलों पे लिटाऊंगा। मोहतरमा शहीद कब जेल नहीं गई। आपने फरियाल तालपुर बीबी को उठाया, मरियम नवाज को उठाया। फरियाल तालपुर मोहतरमा को तो आपने चांद रात को उठाया, बख्तरबंद गाड़ी में लेके गए। फिर जरदारी साहब ने 12 साल गुजारे, कभी मच जेल में, कभी किसी और जेल में। कोई उनको VIP रेस्ट हाउस नहीं मिला था। चेयरमैन सेनेट की जानिब से गुज़श्ता रोज अपोजिशन के 2 सेनेटर्स के जारी किए गए प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को ऐवान में पहुंचाया गया, जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा पर चेयरमैन सेनेट और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का शुक्रिया अदा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने पार्लिमानी रवायात को सरबुलंद रखा। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी रूलिंग में कहा कि उन्होंने 2 सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, ताहम एक को ऐवान में पेश किया गया, दूसरे को नहीं, जिस पर उन्होंने मामला सेनेट की इस्तेकाक कमेटी के सपुर्द कर दिया। इजलास में 9 मुंतखब सेनेटर असद कासिम ने हल्फ उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने उनसे हल्फ लिया। इजलास जारी था कि ऐवान में कोरम की निशानदही पर अरकान की मतलूबा कम अज कम तादाद पूरी न होने के बायस इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि माशरे को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि खातून वज़ीर आला के तौर पर उनकी कोशिश है कि ख़वातीन की हर शोबे में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, जबकि विमेन हेल्पलाइन और पैनिक बटन प्रोजेक्ट के जरिए उनके तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है ख़वातीन के लिए ई-बाइक स्कीम का भी आगाज़ किया गया है, जबकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 60% वज़ाइफ होनहार तालिबात के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के तहत नादार बच्चों की इज्तिमाई शादियाँ कराई जा रही हैं और माइनॉरिटी कार्ड के जरिए नादार अक़लियती ख़वातीन को भी सहमाही माली इमदाद दी जा रही है। देही ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए लाइफ स्टॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जबकि आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम के जरिए भी ख़वातीन की हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत ख़वातीन को अपना घर बनाने के लिए बिला सूद आसान इक़सात पर कर्ज दिए जा रहे हैं।
سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ٹانک میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا، جس میں 3 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ مارے گئے خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ یہ خوارج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 3 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگ اقتدار میں آ کر بدل جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف کیسا لیڈر ہے جو حکومت میں آ کر خود تو نہیں بدلا لیکن پورے ملک کے حالات بدل ڈالے۔ معاشی بحران، مہنگائی کا طوفان، بازار سنسان، ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ آخر کون سنبھالے گا پاکستان۔ پھر نئے عزم کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اصلاحات کے مشکل فیصلے کیے، دن رات ایک کر دیے، اور آج یہ صرف 1 سال نہیں، محنت کی ایک داستان ہے جسے آنے والے زمانے دیر تک دہرائیں گے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان باشندوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ 1 اپریل سے تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان شہریوں کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ باعزت طور پر واپس چلے جائیں۔ پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 مارچ 2025 کو بنو کینٹ خودکش حملوں میں فتنہ الخارج کے 16 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے تھے۔ ہلاک خارجیوں میں افغان دہشت گرد بھی شامل تھے اور اس حملے کی منصوبہ سازی بھی افغان سرزمین پر کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے پاسکو کو ہدایت کیا کہ نئی فصل کی آمد سے قبل ذخیرہ شدہ گندم کی فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ گندم کی فروخت کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ گندم کی خرید و فروخت کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے پاسکو حکام کو ہدایت کی کہ ادارے کے دیگر انتظامی اور مالیاتی مسائل کے حل کے لیے بھی مؤثر پالیسیاں تشکیل دی جائیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ خواتین ملکی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ناروال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ مائیں آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کی ضامن ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ خواتین تعلیم، صحت اور معیشت سمیت ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ خواتین کی ترقی کے لیے حکومت ہر طرح سے معاونت فراہم کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا یہ ویژن ہے کہ جب تک ہمارے ملک کی ہر بیٹی اس قابل نہیں ہو جاتی کہ وہ ملک کی ترقی میں مردوں کے ساتھ مل کر اپنا پورا کردار ادا کر سکے، ہماری ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا خواتین کی امپاورمنٹ کا ذریعہ تعلیم ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی بیٹیوں کو، بچیوں کو وہ تمام مواقع دیں کہ وہ اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ہر جوہر کو ملک کی ترقی کے لیے پوری طرح بروئے کار
ला सकें। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नारोवाल के मुख्तलिफ स्कूलों में आला कारकर्दगी दिखाने वाली बच्चियों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नारोवाल। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। डॉक्टर रूथ फाओ दुखी इंसानियत के लिए मसीहा का दर्जा रखती थी। मुल्की तामीर और तरक्की में अक़लियतों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। लाहौर में डॉक्टर रूथ फाओ अवार्ड 2025 के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत बासलाहियत नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार के मसावी मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तकरीब के इख्तिताम पर राना मशहूद अहमद खान ने समाजी शोबों में शानदार खिदमात सर अंजाम देने वालों में शील्ड्स तकसीम की। पाकिस्तान के ज़रई मुस्तकबिल के लिए महफूज शहीद कैनाल की तामीर नागुज़ीर। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल तामीर की जा रही है। 176 किलोमीटर तवील कैनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक है, जो सलेमान की हेडवर्क से फोर्ट अब्बास तक तामीर की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए 12 लाख एकड़ ज़मीन लीज पर दी, जबकि 225 अरब रुपए से ज़रा मुख्तस किए हैं। अगले मरहले में फोर्ट अब्बास से बरूद और फोर्ट अब्बास से ढूंढावाला तक नहर बनाई जाएंगी। इन मंसूबों की तकमील से लाखों एकड़ ज़मीन को सैलाब किया जा सकेगा। सूबे अपने मुख्तसरा पानी के वसाइल के अंदर रहते हुए नहरी मंसूबे शुरू कर सकते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इस मंसूबे पर दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज और खुफिया एजेंसियों की तरफ से कश्मीरी खवातीन को निशाना बनाए जाने का सिलसिला मुसलसल जारी है और वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का शिकार हैं। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेस ने 2001 से अब तक 688 कश्मीरी खवातीन को शहीद किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जारी रियासती दहशतगर्दी के दौरान 1989 से अब तक 22,981 खवातीन बेवा हुई हैं, जबकि भारतीय फौजियों ने इस अरसे के दौरान 11,266 खवातीन को बेहुरमती का निशाना बनाया। कुनन पोशपुरा में इज्तमाई आबरू रेजी और कत्ल का अलमनाक वाक़या भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा इलाके में खवातीन पर मजालिम की वाज़ेह मिसाल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए खवातीन की आबरू रेजी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताहम कश्मीरी खवातीन के लिए ये दिन बेमानी है, क्योंकि बेलगाम भारतीय फौजियों के हाथों उन्हें रोज़ जुल्म सितम का निशाना बनना पड़ता है और काबिज भारतीय फौज की मौजूदगी में उनकी जानें और इज्जतें कतन महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी खवातीन के हौसले बुलंद हैं और हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी जदोजहद मर्दों के शाना बशाना जारी है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की खवातीन की हालत ज़ार की जानिब मबजूल कराने के लिए दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे हुए। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन की हालत ज़ार की जानब मबजूल करवाने के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर क़यादत एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में शरीक सैकड़ों ख़वातीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम रखे थे, जिन पर भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी ख़वातीन की रिहाई के मुतालबात दर्ज थे। शुराका ने सयाह झंडे लहराकर भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया और भारतीय फौजी मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकबूजा कश्मीर में जहाँ पे ख़वातीन को सीधा से जेलों में डाला जा रहा है, बल्कि उनके घरों पे तलाशी के नाम पे वो जो है भारतीय फौज को ये इख्तियार दिया गया है कि जब चाहे उनके घरों में दाखिल हो उनकी बेरुती करें। हकूक़ की पामाली हो रही है, चाहे वो माशी हो, चाहे माशरती हो, मजहबी हो, हर लिहाज से ख़वातीन की इस्तेहसाल किया जा रहा है और मगरब इस पर बिल्कुल खामोश है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सहेली सरकार मुजफ्फराबाद में भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन पर भारतीय बर्बरियत काबिल मज़म्मत है। बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस वक्त हार्ड जेल में कैदोबंद की अज़ियतें बर्दाश्त कर रही हैं। हम आलमी बरादरी से ये मुतालबा करते हैं कि उनकी रिहाई के लिए ज़रूर कोई ना कोई आप लोगों का स्टेप होना चाहिए। तकरीब के शुराका ने रैली
की शक्ल में मार्च किया। रैली में तालिबात और उसातिज़ा समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने ख़वातीन के हुकूक की दावेदार तंजीमों से भारतीय जेलों में कैद आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी, नाहिद नसरीन और दीगर कश्मीरी ख़वातीन की रिहाई और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर के हल का मुतालबा दोहराया। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। भारतीय फ़िज़ाइया बदहाली का शिकार, एक ही दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय फ़िज़ाइया का A32 ट्रांसपोर्ट तैयारा बगडोगरा में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इससे कबल भारतीय फ़िज़ाइया का जैगुआर तैयारा रियासत हरियाणा में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहा। इससे कबल गुज़श्ता माह लड़ाका तैयारा मिराज 2000 मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी के करीब गिरकर तबाह हो गया था। नवंबर 2024 में भी एक MiG-29 लड़ाका तैयारा आगरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फ़िज़ाई वसाइल की हालत अबतर है। दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ों के स्क्वाड्स, जिनकी तादाद 42 से कम होकर 30 रह गई है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से भारत का दिफाई निशान खोखला हो चुका है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी न जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम, खेलने आए पूरी तैयारी से, हम जिम्मेदारी से। खेलने आए गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। खेलों की खबरों में खुशामदीद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन होगा, फैसला कल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान फाइनल में हो जाएगा। दुबई में होने वाला मुकाबला दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं निसार मेहदी की ये रिपोर्ट। And both openers now gone. Not this time, you said the world's best. This is a very good innings. Taken. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा? भारत इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहेगा या न्यूजीलैंड मैदान मारेगा? फैसला फाइनल में होगा। The finger's gone up. And a good half century. चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैच में दोनों टीमें 2 मार्च को दुबई के मैदान में आमने सामने आ चुकी है, जिसमें भारत 44 रन से कामयाब रहा। And that's it for him. And I'm afraid that is it for New Zealand. India will go top of the table. मजमूई तौर पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान अब तक 119 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारत ने 61 और कीवीज ने 50 मैचेस में कामयाबी समेटी। एक मुकाबला टाई हुआ, जबकि 7 मैचेस बेनतीजा रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख देखें तो दोनों टीमें 2 मरतबा मद्दे मुकाबिल हुई और एक मैच अपने नाम किया। भारत 5वीं मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है, जबकि कीवीज ने 3री मरतबा फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। भारतीय टीम 3री मरतबा व्हाइट कोट पहनकर ट्रॉफी थामेगी या कीवीज 25 साल बाद दूसरा टाइटल जीतेंगी? फैसला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल प्रेशर गेम है। दबाव से बेहतर तौर पर निपटने वाली टीम कामयाबी हासिल करेगी।
दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शुभमन गिल ने कहा कि हम भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुके हैं, लेकिन इस बार पूरी टीम जीत के लिए मुकम्मल तैयार है। टीम का माहौल ज़बरदस्त है और तमाम खिलाड़ी पुरज़्म हैं। इनका कहना था कि बड़े मैच का दबाव हमेशा रहता है, लेकिन तजर्बाकार खिलाड़ी दबाव से निपटने में कामयाब होते हैं। शुभमन ने तस्लीम किया कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के दबाव में विकेटें गंवाई थीं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा है कि भारतीय टीम को दुबई के कंडीशंस का ज्यादा अंदाजा है, जिसकी वजह से फाइनल मैच चैलेंजिंग होगा। दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मिचेल सैंटनर ने कहा कि फाइनल में अच्छी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे और टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बहैसियत कप्तान कोई दबाव नहीं है, वो अच्छे खिलाड़ी हैं कि कप्तानी में खेलकर बहुत अच्छा सीख रहे हैं। मिचेल सैंटनर ने कहा कि हमारी टीम सीनियर और जूनियर्स खिलाड़ियों के कम्बिनेशन पर मुश्तमिल है, जो बेहतरीन नताइज देने के लिए सलाहियत रखती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए न्यूजीलैंड और भारत ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। भारतीय टीम ने दुबई में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली ने स्पिनर्स और पेसर्स की गेंदों का सामना करते हुए तवील बैटिंग सेशंस किए। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और वीरेंद्र जडेजा ने टेनिस ऊंचे शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस की। भारत 5वीं मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है, जबकि कीवीज ने 3री मरतबा फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। मुल्की क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान टेलीविजन ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 का टाइटल जीता है। पीटीवी ने फाइनल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दी। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान क़य्यूम अपनी इस रिपोर्ट में। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 का टाइटल पहली मर्तबा पीटीवी के नाम। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पीटीवी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को इब्तदा से ही दबाव में रखा। दोनों टीमों के दरमियान 5 रोजा नाइट फाइनल पिंक बॉल से खेला गया। पीटीवी के मोहम्मद शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग के बाइस पहली इनिंग्स में स्टेट बैंक 205 रन पर आउट हुई। मोहम्मद शहजाद ने हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। पीटीवी ने वकार हुसैन और मोहम्मद शहजाद की सेंचुरियों की बदौलत पहली इनिंग्स में 317 रन बनाकर 112 रन की बढ़तरी हासिल की। दूसरी इनिंग्स में स्टेट बैंक की टीम 264 रन पर पवेलियन लौट गई। पीटीवी के कप्तान इमाद भट्ट ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टेलीविजन को 153 रन का हदफ मिला, जो उसने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैं लीडर तो जरूर था, लेकिन मैं ये कहूँगा जिस तरह टीम जल थी, मेरा ये एक बिलीव है कि टीम अगर टीम हो तो बड़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आई थिंक जिस तरह वो जल होके खेले हैं, जिस तरह पैशनेट होके उन्होंने थ्रू आउट क्रिकेट खेली है, मैं सारे का सारा क्रेडिट जो है ना उन प्लेयर्स को देता हूँ। तमाम मैचों के अंदर एक ऐसे लड़के थे जो कि बज़ाहिर उनके नाम कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। एक अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका था, एक टीम स्पिरिट बन गई थी और उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ग्राउंड के अंदर दिखाया। पीटीवी के मोहम्मद शहजाद ने न सिर्फ फाइनल बल्कि पूरे इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। अयाज तबस्सुम टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज करार पाए। मुश्ताक अहमद को बेहतरीन बॉलर का अवार्ड दिया गया। रनर अप टीम स्टेट बैंक को ट्रॉफी के साथ साथ 25 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई, जबकि चैंपियन टीम पीटीवी ने ट्रॉफी के साथ साथ 50 लाख रुपए की इनामी रकम भी हासिल की। टाइटल जीतने के बाद जहां खिलाड़ी खुश हैं, वहीं पीटीवी मुलाजमीन में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पीटीवी की टीम अब उम्मीद है कि वो दीगर टाइटल्स भी जीत कर लाएगी। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर कैपिटल प्रीमियर लीग के साथ मुंसलिक हो गए। इस्लामाबाद में कैपिटल प्रीमियर लीग के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें शोएब अख्तर ने बतौर मेंटोर और ब्रांड एम्बेसडर मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि कैपिटल प्रीमियर लीग एक ऐसा इकदाम है जिससे न सिर्फ टैलेंट सामने लाएंगे बल्कि दुनिया को पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक महफूज मुल्क है। उन्होंने कहा कि इस लीग को परवान चढ़ाने के लिए जहां तक मुमकिन हुआ इकदाम उठाए जाएंगे। शोएब अख्तर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर दुख हुआ। ख्वाहिश है कि बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। तकरीब से कैपिटल प्रीमियर लीग की इंतजामिया ने भी खिताब किया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी है। T20 स्क्वाड ने LCCA ग्राउंड
स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, गजा और मगरबी किनारे में इसराइली जारियत फिर शुरू हो गई है। जनूबी शहर रफा में इसराइली ड्रोन के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक रफा में इसराइली टैंकों ने भी आम शहरियों पर फायरिंग की जिससे कई अफराद जख्मी हुए। मगरबी किनारे के इलाके तलकरम में काबिज फौज ने जारियत का मुजाहरा करते हुए कई घरों को मिसमार कर दिया। नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर 16 इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की आमद पर पाबंदी का सिलसिला ताहाल जारी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रज़ाकारों के मुताबिक गजा में इमदाद की बंदिश की वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं। लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं। अवाम पहले ही अपने घरों से महरूम है, अब खाने के लिए भी परेशान हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो तालीम के जरिए मुस्बत समत में आगे बढ़ें। कोयटा में आतिशज़दगी से मुतासरा कॉलेज की इमारत की तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि तशद्दुद किसी भी मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं हो सकता। दुश्मन मसनूई जहानत के जरिए नौजवानों में इंतशार और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला ने साइंस कॉलेज कोयटा के लिए 1 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बिलाल अस्तल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फ़लस्तीन कॉज की हमेशा खुलकर हिमायत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त हज़ारों फ़लस्तीनी जेलों में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है। OIC इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फ़लस्तीन में खुराक की कमी और दीगर मसालिम इंतहाई अफसोसनाक हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से IG पुलिस बलूचिस्तान मुअज़्ज़म जाह अंसारी ने मुलाकात की और उन्हें सूबा बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान मंदोखेल ने कहा कि पुरअमन मुआशरा ही हकीकी मानों में तरक्की और खुशहाली का राह हासिल कर सकता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूबे भर में अमन की फ़ज़ा को बरकरार रखने और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने कल से 16 मार्च के दौरान बारिशों के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलुम, वजीरिस्तान, पेशावर, कोहाट, चित्राल, कोहिस्तान, बाजोड़, मोहम्मद एजेंसी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -11, अस्तोर गोपिस -3, हुंजा -2, कालाम और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 13, कराची 19, पेशावर 10 जबकि कोयटा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 10, लह -11, पुलवामा 2 जबकि अनंतनाग में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।